أفلح المؤمنون. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ. ذیوکار خطاب ماشاءاللہ احمد رضا بھائی نے فرمایا اور ہمارے بہت ہی پیارے اور حضور قبلہ کنز العلماء کے بہت ہی پیارے شاگرد اور آپ کے حکم سے قبلہ نے تقریباً 12 سال لاہور میں خدمت دین کی ہے. آپ کے سامنے قبلہ شمس البہادر جلالی صاحب دامت برکاتہ العالیہ آپ نے بہار شریعت کی روشنی میں آپ کو عقیدہ معصومیت پڑھ کر سنایا بھی اور سمجھایا بھی، اور ماشاءاللہ بہت آسان انداز سے سمجھایا کہ اس محفل میں بیٹھا ہوا ہر ایک آدمی بخوبی سمجھ گیا کہ انبیاء کے بعد اگر کوئی کسی امام یا ولی کو معصوم جانے وہ گمراہ و بد دین ہے. جی وقار ہماری حویلی لکھا میں ایک گروہ نے اہل سنت و جماعت کا نام اپنے ساتھ لکھایا ہوا ہے اور انہوں نے عقیدہ معصومیت پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے. مجھے پتا چلا کہ میری تصویر اور قبلہ کنز العلماء مفکر اسلام پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب دامت برکاتہ العالیہ آپ کی تصویر کو مختلف گروپوں میں مختلف دوستوں کو سینڈ کیا گیا اور ساتھ میں یہ کہا گیا کہ عقیدہ یہ جو تاجدار ختم معصومیت کا نعرہ ہے یہ شریعت کے بالکل خلاف ہے، جو کہ بہت بڑی جہالت ہے. اور اگر امام اہل سنت کو اٹھا کر دیکھے، فتاوی رضویہ شریف کو اٹھا کر دیکھے جلد 14 تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو کسی غیر نبی کو معصوم جانتا ہے وہ اہل سنت سے خارج ہے، وہ اہل سنت والا نہیں ہے. اچھا تو ہمیں جب پتا چلا تو ہم نے اون کر لیا، ہمیں بس تھوڑی دیر میں بھی چلائیں گے اون کر لیں. تو جب ہمیں پتا چلا کہ یہ معاملہ چل رہا ہے تو میں نام نہیں سمجھتا، اللہ رب العزت ان کو اس کا بہت زیادہ اجر عطا فرمائے گا کہ عقیدہ ختم معصومیت بالکل عقیدہ ختم نبوت کی طرح ہی ہے. جس طرح عقیدہ ختم نبوت بیان کرنا ہم پر لازم ہے، اسی طرح عقیدہ ختم معصومیت بھی بیان کرنا، اس کا دفاع کرنا ہم پر لازم ہے. جی وقار اب تھوڑی سی ہے یہاں پر سمجھنے کی تھوڑی سی بات ہے کہ کچھ لوگ مفتیان بھی فٹ فور سے بول دیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم معصومیت زندہ باد زندہ باد. اچھا آپ کہتے ہیں کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری معصوم ہے، آپ کے پاس کوئی معصوم نہیں آ سکتا، تو فرشتے تو ہیں، آپ فرشتوں کا انکار کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا عقل سے کام لیں، آپ بڑے ہیں، نہ میری عمر ہے نہ میرا اسٹیٹس ہے، لیکن جب بھی دین اسلام پر حملہ ہوگا اگر بڑے چپ رہیں گے ماشاءاللہ، اور ہمیں فخر سے کہتے ہیں ہم، اور ہمارا فخر ہے سرمایہ اہل سنت قبلہ کنز العلماء مفکر اسلام پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب جو بالکل بول پڑھتے ہیں. میں ان بڑوں کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے اس چھوٹے سے علاقے حویلی لکھا میں بڑوں کی بات کر رہا ہوں کہ جب یہ خاموش رہیں گے تو مجھ جیسی جو چیونٹی ہے وہ بھی نکل پڑے گی اور پھر کیا کہیں گے کہ وہ ہاتھی ہے یہ تو چیونٹی ہے. میں نے کہا کہ یار تھوڑا سا اگر غور کرے نا، تھوڑا سا اگر غور کرے، یہ چھوٹی سی چیونٹی بڑے ہاتھی کو گرا کر خاک میں ملا دیتی ہے، مار دیتی ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. پھر کہتے ہیں جی ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس لوگ ہیں، تم اکیلے ہو ہم کامیاب ہیں. میں نے کہا کہ یہ تمہاری غلط سوچ ہے کہ تم لوگ کامیاب ہو. الحمدللہ میں دعوے کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ یہ بات کروں گا کہ میں کامیاب ہوں. اٹھاؤ قرآن مجید فرقان حمید پارہ 18 ہے، ایت بھی پہلی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن فرما رہا ہے کہ مومن کامیاب ہو گئے. بے شک. مومن کسے کہتے ہیں؟
मोमिन कहते हैं ईमान वाले को, मोमिन कहते हैं ईमान वाले को। ईमान वाला कौन होगा? जो सहाबा पर भौंकेगा, जो आले बैत पर भौंकेगा? नहीं। ईमान वाला वो है जिसका अकीदा दुरुस्त है, जिसका अकीदा दुरुस्त है। अकीदा खत्म मासूमियत पर जिन लोगों ने हमला करने की कोशिश की, मैंने अपनी इस्तात के मुताबिक, अपनी ताकत के मुताबिक उनको रोका की कोशिश की मुकम्मल तौर पर, लेकिन फट से बोल पड़ा कि लो जी स्टेडियम में मैं मुनाजरा करूंगा उनका कैमरा और सारा खर्चा मैं अपने साथ लेता हूं। मैं कहा ठीक है जी, हमें मंजूर है, लेकिन एक छोटी सी बात की उसने कि दावत मैं देता हूं। कि इस तरह हुआ? जी बिल्कुल। उसने कहा कि दावत मैं देता हूं। मैंने किबला साकिब साहब से सियालकोट वाले आपसे राब्ता किया तो आपने मुफ्ती करीम साहब से राब्ता मेरा करवाया। उन्होंने फरमाया कि मुद्दई वो मान रहे हैं। उसने कहा कि मैं दावत देता हूं, तो आप कहें कि हम मुनाजरा कबूल करते हैं। वैसे कहा करने से पहले मैंने कह दिया था कि उन्हें कहें कि दावत हम कबूल करते हैं, पहले भी कह दिया था, लेकिन बड़ों की मुशावरत जरूरी है। तो उन्होंने फरमाया कि एनओसी वो देंगे, एनओसी हुकूमत से लेकर वो देंगे। मैंने कहा ठीक है। जब हमने एनओसी की बात चलाई तो उन्होंने कहा कि लो जी अगर तो हबीबुल्लाह ने दावत ना दी थी तो असं समझा कि दलाली बच गए। मैं कहा बड़ी गलत फैमिली है बच्चों, दलाली बजने वाले नहीं बजाने वाले ने। बेशक सुभान अल्लाह। ये एक बहुत बड़ा सरमाया है और हमारे इलाके की फख्र है। आप हुकूमत कार्य में अपना एक मदरसा भी तमीर कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा तोहफा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अता फरमाया है। इंशाअल्लाह इनके साथ मिलकर ही हम बातिल का मुकाबला करेंगे। जितनी मेरी ताकत थी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे साथ लोग नहीं है, बल्कि मैंने कहा कि चलो मैं मुनाज़रे के लिए तैयार हूं। अगर वो मुझे शिकस्त दे देते हैं तो मैं उन्हें 10,000 रुपया भी दूंगा। कि बोला मैंने ये भी कहा था कि मैं उनकी गुलामी करने के लिए तैयार हूं। मैंने कहा था, ये लफ्ज़ मैंने बोले थे, मेरे पास मुकम्मल रिकॉर्डिंग मौजूद है। अब क्या चला है कि लो जी उन्होंने कोई प्रूफ है कोई सी गल की कोई, लेकिन मुझे शख्सियत ने कहा कि वो कुरान उठा लेते हैं, झूठा कुरान उठा लेते हैं, वो नाम निहाल मुफ्ती। तो जीवकार मेरे पास प्रूफ मौजूद है। वो 4 सेकंड वाली जो हमने निकाली वो 2 से 3 मरतबा चलाएं। वो एक बंदे का नाम है, वो ये आ जाएगा, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हमने नाम भी लेना है। जीवकार आपने देखा वो कह रहा है कि मेरी ज्यादा जी गल है जैद ना ले, ठीक है, जैद उमर बकर कई हो गए, असि ना लेना मुनासिब नहीं समझते, कई हो गए। हमारे पास नाम मौजूद है, 4 नाम उसने हमें बताए और जो पहला नाम उसने बताया मैंने ये यकीन था और मैंने अपने यकीन की बुनियाद पर उनका इल्म देखते हुए मैंने ये बात की कि ये फतवा नहीं दे सकते, ये ऐसा फतवा नहीं दे सकते। जो रिफत की पैरवी कर रहा हो, जो रिफत का परचम लहरा रहा हो, ये वो फतवा नहीं दे सकते। मैंने कहा जो बाकी 3 है वो नाम के मुफ्ती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह शामिल है, जिसमें फतवा हिजरिया शरीफ की 16 जिल्दें शामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम वो है। अच्छा जी, अब नाम तो आ गया। हमने कहा कि हम अकीदा मासूमियत पर मुनाज़रे के लिए तैयार हैं और हमारे पास दलीलें भी मौजूद हैं। कुछ भाई हमसे नाम मांग रहे थे तो हमने नाम पेश कर दिया एक, लेकिन हमने अभी बाद नहीं नाम किया और ना ही अभी हमने करना है, क्योंकि जिस फल की खुशबू को सुनकर लोग उनके करीब जा रहे हैं ना, वो फल जिस दरख्त पर लगा था उस दरख्त की जो जड़ है वो इधर साथ ही मज़ार में तशरीफ फरमा है मौलाना अब्दुल अली साहब दाताजू मेरे, उनकी दिन रात की मेहनत, जिस फल की खुशबू पर आज वो लोग उछल रहे हैं, खुदाए रहमान की कसम मैं दावे के साथ कहता हूं कि दलील के मैदान में आए इतनी दलीलें दूंगा कि उनके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। या उन्हें हक तस्लीम करना होगा या फिर उन्हें यह वादे करना होगा कि वो वापिस की गोद में बैठकर उनके पैसे लूट रहे हैं। मैं असल में जिस जड़ को देख रहा हूं
उसको देखना और उसका लिहाज है, जिसने खुद सादा रहकर दुनिया की परवाह नहीं की, एक दरवेशाना जिंदगी गुजारी। मेरी बात समझने वाले समझेंगे, और उस जड़ की बिना पर पानी गोदी जिस तरह होता है सारे मामलात, ये दादा हुजूर किबला मौलाना मोहम्मद अब्दुल अली साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी बदौलत है। ये कहें कि हमें पता नहीं है या भूल गए। हमारी पहली महफिल दर्स कुरान इसी बंदे ने रखवाई, चौकी इंचार्ज चौकी वाले लड़का था फैसल, चौकी में भरकर, पता है प्राइवेट था कि रजिस्टर था, उसको इसने रिश्वत दी या फिर इसने उसको खाना खिलाया, कंफर्म है ये हमें। और हमारी महफिल ने रुकवाने की कोशिश की, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो महफिल भी की, उसके बाद दूसरी भी की, तीसरी भी की, चौथी भी की, पांचवी भी की, और ये छठी कर रहे हैं, सुभान और शामिल करेंगे। और इंशाअल्लाह घर घर तहरीके सिराते मुस्तकीम के ज़ेरे रहमान महफिल होगी, ये मेरा दावा है। ज़िक्र अकीदाए खत्मे मासूमियत के हवाले से किबला शमून बहादुर जिलानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, आपने बहारे शरीयत से वाज़ह फरमा दिया। मेरे पास कानून शरीयत भी है, ये हर जामिया में तंजीमुल मदारिस के तहत दर्जा उला आमा साल अव्वल में पढ़ाई जाती है ये किताब। अब जिनको पढ़ाते 36-36, 40-40 साल हो गए, मुझे समझ नहीं आती कि वो कैसे अकीदा मासूमियत से मुंह फेर बैठे। वक्त मुख्तसर है, मकसूद ये था कि उन्होंने कहा कि हबीब अपना वीडियो बयान रिकॉर्ड करा के हमें भेजे, नहीं तो हम कहेंगे जलाली भाग गए। मैं ये बयान रिकॉर्ड करवा कर ये बताना चाहता हूँ कि जलाली भागने वाले नहीं, भगाने वाले हैं। हमने नाम दे दिया। अच्छा, अब बात को मुख्तसर करते हुए, क्योंकि टाइम भी काफी तवील हो गया है, कि कुछ लोग एतराज करते हैं कि जलाली साहब ने ये नारा क्यों लगवाया, जब इतने दिनों से इतने वक्त हो गया कि सब खामोश हैं, तो इस वजह से लगाया। वो वीडियो चला रहे सेकंड वाली जो कट की है, चला आवाज कौन फातिमा गुजारा, जो सैयदा भी है, जो जय्यदा भी है, जो तैयबा भी है, जो तारा भी है, जो मामूना भी है, जो मामूना भी है, जो मामूना भी है, जो मामूना भी। दोबारा चला देंगे। इन पाक हस्तियों का मकाम और शान का क्या कहना। कौन फातिमा गुजारा, जो सैयदा भी है, जो जय्यदा भी है, जो तैयबा भी है, जो तारा भी है, जो मामूना भी है, जो मामूना भी है, जो मामूना भी है, जो मामूना भी। जीवकार, आपने सुना कि ये राफियों के स्टेजों से आवाज आनी चाहिए थी ना, लेकिन ये वीडियो प्रूफ मेरे पास मौजूद है कि ये अहले सुन्नत के स्टेज से आई है आवाज। देखो कि कितनों को तकलीफें हुई होंगी, कितनों की रातों की नींदें उड़ी होंगी इस मसले को लेकर कि हाय अफसोस कि अहले सुन्नत व जमात के स्टेजों से ये आवाजें आ रही हैं जो कल इमाम बारगाह में गूंजती थी, जो वापिस बातें बयान करते थे, वो बातें आज अहले सुन्नत व जमात के स्टेजों से हो रही हैं। जीवकार कायदे अहले सुन्नत मुफक्किर इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब दामत बरकातुहुल आलिया, आपने याद करते हुए मोबाइल के करीब लाकर बहुत चला दे जो दूसरी है जलाली साहब वाली। जलाली साहब ने जिन अल्फाज के साथ अपनी ताजदार खत्मे मासूमियत का अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबी का या सय्यदी या खातमुल मासूमीन का नारा लगवाया, वो अल्फाज किबला कंजुल उलमा के सुनिएगा और खुद ही फैसला कीजिए कि ये जिस बंदे ने अल्फाज बोले हैं ये अहले सुन्नत का वाला ही है कि ये रवाफिज और खारजियों से, देवबंदी वहाबियों शियों से पैसे लेने वाला है। ज़िवकार, जब ये जुमले आप लोग सुनेंगे तो आप खुद कहेंगे कि यही अहले सुन्नत का दर्द रखने वाला है, यही इस्लाम का दर्द रखने वाला है। चलाएं जी। अजान पढ़ो, अजान के बाद दुरूद में अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन।
कादियानियों का रद्द फर्ज है, बार बार है, मगर वो शैतान छुपे हुए हैं, झंडे लगा के नहीं बैठे हुए। ये तो तुम्हारी हर गली में बैठे हैं जो सरकार को आखिरी मासूम नहीं मानते और इस माने में खत्म नबूवत का इनकार करते हैं। लिहाजा ये दुरूद शरीफ पढ़ा जाए तकरीर के खुतबे में भी, ये दुरूद शरीफ पढ़ा जाए निकाह के खुतबे में भी, जुमे के खुतबे में भी। लिहाजा ये दुरूद शरीफ पढ़ा जाए तकरीर के खुतबे में भी। सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। लेकिन जिस तरह पहले वॉइस चलाई गई, आपको बताया गया कि हमारे अहले सुन्नत के स्टेजों से अकीदा रवाफिज बयान हो रहा है, शियों का अकीदा बयान किया जा रहा है, तो इस सूरत में अवाम अहले सुन्नत किस तरह बच सकती है? जिन अवाम ने बहार शरीयत का नाम नहीं सुना, उसको क्या पता कि शरीयत क्या है? जिसने कभी किसी आलिम दीन को टाइम ही नहीं दिया, वक्त ही नहीं दिया, अपनी मसरूफियात की वजह से या दीगर मसरूफियात जो सी भी हों, उनको क्या पता कि अकीदा मासूमियत क्या है? किबला शमून बहादुर जलाली साहब दामत बरकातुहुल आलिया, आपने बहुत प्यारी बात की कि हमारी जो आवाम है वो अहले बैत के नाम पर, पंचतन पाक के नाम पर झूम उठती है। तो उन लोगों ने इस चीज का, इस बात का गलत फायदा उठाया और उन्होंने नाउजुबिल्लाह सुम्मा नाउजुबिल्लाह किबला कंजुल उलमा मुफक्किर इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब दामत बरकातुहुल आलिया आप पर झूठी FIR दर्ज करवाई। जी वकार, आपने 4 माह तक की सजा काटी और जो एक बहुत ज्यादा अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि ये कानून पाकिस्तान, ये इस्लामी जमहूरिया के नाम से बनने वाला पाकिस्तान जो है, इसमें इस्लामी कवानीन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जी वकार के 302 वाला जो मुजरिम है, कत्ल के केस में जो गया हुआ है, उसको फांसी की सजा हुई है, उसका भी अगर कोई भाई या माँ बाप में से कोई भी फोत हो जाता है तो उसको भी रिलैक्स होती है कि वो आकर जनाजा पढ़ ले। लेकिन किबला कंजुल उलमा के बहुत ही प्यारे भाई शेर अहले सुन्नत, जिन्होंने राफजियों को उल्टा लटकाया और दीन का परचम बुलंद किया, मेरी मुराद मुफ्ती मोहम्मद आबिद जलाली साहब, किबला शमून बहादुर जलाली साहब के क्लास फेलोज भी हैं और उस्ताद भी हैं। तो ये जब वो आप विसाल फरमा गए तो आपके जनाजे पर नहीं आने दिया गया, बल्कि डिमांडें की गई कि रजू करो, और कुछ हसद की बना पर कह ले, बुग़्ज़ की बना पर कह रहे, जहालत की बना पर कह ले, कहते कि कर लेना सीधे रजू। तो किबला जलाली साहब दामत बरकातुहुल आलिया आपने फरमाया कि अगर मैं रजू कर लेता इस मसले पर जिस पर रजू बनता ही नहीं है, वो जो रवाफिज है उन्होंने ये नुक्ता पकड़ लेना था, उन्होंने ये एक पॉइंट पकड़ लेना था, ये जिंदा था, तुम लोगों ने रजू करवा ली। जो तुम्हारे मज़ारों में जिन्हें तुम जाते हो, जिनके वसीले से तुम दुआएं करते हो, जिनके तुमने इतने बड़े बड़े मज़ार बनाए हुए हैं, जिनके अलकाबाद लेकर तुम लोग चलते हो, वो तो मर गए। उन्होंने ये अकीदा बयान किया है, उनसे जाकर रजू करवाओ। उनसे रजू नहीं करवा सकते तो ये काबिल अहले सुन्नत पर फतवा लगना था, बहार शरीयत पर मुफ्ती अमजद अली आज़मी अलैहि रहमा आप पर फतवा लगना था, फतवा रिज़विया शरीफ आला हजरत पर फतवा लगना था और दीगर ऐमाए किराम पर फतवा लगना था, 14 सदियों पर फतवा लगना था। ये तो किबला कंजुल उलमा मुफक्किर इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब ने न हक जेल काटी, लेकिन हमारे इस्लाम का अहले सुन्नत का परचम बुलंद किया और राफजियों को, शियों को उल्टा लटका दिया, उनको बता दिया कि तहरुल कादी जैसे तो बिक सकते हैं और दिगर, मैं अब नाम लेना मुनासिब नहीं समझ रहा, वो बिक सकते हैं, लेकिन अशरफ आसिफ जलाली ये अहले बैत व सहाबा का नौकर है, गुलाम है, ये हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम का गुलाम है और आला हजरत का रूहानी बेटा है। इसको कोई चीज नहीं खरीद सकती, कोई करेंसी नहीं खरीद सकती। जी वकार, आपने इस बात को साबित किया है और इस साबित कदमी के साथ आपने अहले सुन्नत व जमात के तर्जमानी करते हुए पहरा दिया है। आप अक्से शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी हैं, किबला
शाह अहमद नूरानी साहब ने अहले सुन्नत का परचम लहराते हुए कादियानियों को पार्लियामेंट हाउस में काफिर और मुर्तद करार दिलवाया और दिलाइल के अंबार लगा दिए। ये अकीदा खत्म मासूमियत पर जो हमला है, ये फकत अहले सुन्नत पर हमला नहीं बल्कि ये इस्लाम पर हमला है, और ये हजूर नबी करीम रऊफुर रहीम की नामूस पर हमला है। जो लोग झट से ये मान जाते हैं कि ताजदार खत्म मासूमियत का नारा लगाना गलत है, बेबाक है, यानी वो मासूम आने को मानते हैं। अगर किसी को मासूम आना मानेंगे तो जो कुतुब में तारीफें लिखी हुई हैं कि जो मासूम है होता ही वो है जो नबी हो, गैर नबी मासूम नहीं होता। तो जब तुम लोग गैर नबी को मासूम मानोगे तो इस तारीफ को लेकर दूसरे लोग भी खड़े होंगे कि ये देखो, तुम कहते हो कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी काफिर है, लेकिन ये तुम्हारे जो मौलवी हैं इन्होंने कहा है कि मासूम आ सकता है, और ये तुम्हारा मौलवी जो है, ये तुम्हारी किताबें ये कह रही हैं कि मासूम होता ही वो है जो नबी हो, वो कहते हैं मासूम आ सकता है। हम कहते हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मासूम है, तो फिर तुम्हें नबी मानना होगा। नौजुबिल्लाह सुम्मा नौजुबिल्लाह, हमारा ये हरगिज अकीदा नहीं हो सकता। हमारा ये अकीदा है, अगर हमें तख्ते ताज पर भी लटका दिया जाए और कहा जाए कि एक सेकंड के लिए ये नारा मत लगाओ, तो हम गुरेज नहीं करेंगे। हम कहेंगे हमारा सर तन से जुदा कर दो, हमारा सीना गोलियों से छली कर दो। हम यही नारा लगाते रहेंगे, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा ये अकीदा है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी काफिर और मुर्तद है, बेशक बेशक, इसमें कोई शक नहीं। हमारा ये अकीदा है कि अगर कोई नबूवत का दावा करता है, जो उसे ये कहे कि तेरे पास दलील क्या है कि तू नबी है, अब मैं कहता हूँ वो भी काफिर है, वो भी काफिर है। कुरान मजीद फुरकान हमीद का फैसला है। हुजूर फरमाते हैं कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि आप आखिरी नबी हैं। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह आखिरी नबी हैं, इसी तरह आखिरी मासूम भी हैं। और मासूम, ये जो हम आखिरी मासूम कहते हैं, ये फरिश्तों को हम अलग कर लेते हैं कि जो फरिश्ते हैं वो तो मासूम है ही हैं। हम इंसानों की बात कर रहे हैं कि इन इंसानों में गैर नबी जो है वो मासूम नहीं हो सकता। हजूर नबी करीम रऊफुर रहीम आखिरी नबी हैं, इसीलिए आप आखिरी मासूम भी हैं। तो हमें इस नारे को बावाज़े बुलंद अब कहना भी है और इसका खूब प्रचार भी करना है। मेरे पास मुनाज़रीन की कमी नहीं है, मुआमिनीन की कमी नहीं है, कुतुब की कमी नहीं है, दलाइल की कमी नहीं है, लेकिन हम इस बात को मद्देनजर रख रहे हैं कि एक जिस खुशबू की बिना पर तुम उछल रहे हो, उसकी जड़ और उसकी जो उसने उस पौधे को उगाया है, उसकी रखवाली की है, उसका पुण्य मेरी रगों में है। वो मौलाना अब्दुल अली साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, जिनकी मेहनतों काबिशों से आज तुम लोग ऊपर उड़ रहे हो। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि तौबा कर लो, तौबा कर लो, तौबा कर लो और इकादे अहले सुन्नत पर वापस आ जाओ। इमाम जलाली दामत बरकातुहुल आलिया आपके बुग़्ज़ की वजह से अपने लिए जहन्नम का रास्ता इख्तियार ना करो, बल्कि अकीदा अहले सुन्नत को अपनाते हुए इस अकीदे की तर्जुमानी करो कि ताजदारे खत्मे मासूमियत जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे मासूमियत जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह।